آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑا ملک۔ یہ ملک خاص طور پر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں اپنی لڑکیوں کی وجہ سے مشہور ہے، جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے خود ہی مشہور ہے۔ جتنی یہ خوبصورت ہیں اتنی ہی عیاش بھی۔ دنیا کے سب سے ٹھنڈا شہر بھی اس ملک میں موجود ہے۔ سب سے لمبا ریور سسٹم یہاں پر موجود ہے، تو شاید آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا۔ جی ہاں میری جان، آج ہم روس کی سیر کریں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ ملک میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے، یہاں کی خوبصورت لڑکیاں اپنی زندگی کو کیسے انجوائے کرتی ہیں، روس کی ایسی نائٹ لائف جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سب سے ٹھنڈے شہر میں لوگ کیسے رہتے ہیں، ایسی بہت ساری دلچسپ اور حیران کر دینے والی معلومات آج ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں جانیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، تو اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ساتھ ہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں میں بھی شیئر کریں، تاکہ ایسی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ رشیا، جسے روس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اور یہ آدھا ایشیا میں ہے، آدھا یورپ میں موجود ہے۔ اس کا تقریباً 77% حصہ ایشیا میں آتا ہے، جبکہ 32% حصہ یورپ میں موجود ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رشیا میں ایک ہی وقت میں سورج نکلتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، یعنی اگر اس کا ایک حصے میں رات ہوگی، دوسرے حصے میں دن ہوگا، اور اگر دوسرے حصے میں دن ہوگا تو ایک حصے میں رات ہوگی۔ اگر بات کریں اس کے ایک کل رقبے کی، تو یہ تقریباً 17.1 ملین مربع کلومیٹر ہے، جو اس سے دنیا کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ اس عظیم ملک کی سرحدیں 14 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں ناروے، فن لینڈ، آذربائیجان، بیلاروس، چین، جارجیا، اسٹونیا، قازقستان، شمالی کوریا، لتھونیا، منگولیا، پولینڈ اور یوکرین شامل ہیں۔ ماسکو روس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، جو اپنی شاندار تاریخ، طاقتور سیاست اور جدید طرز زندگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے روس کی طاقت کا مرکز رہا ہے، جہاں کریملن، ریڈ سکوائر اور سینٹ پیٹرز کیتھیڈرل جیسے تاریخی مقامات موجود ہیں۔ ماسکو نہ صرف روس کا سیاسی دل ہے، بلکہ معیشت، ثقافت اور ٹیکنالوجی کا بھی ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر سے گزرنے والا دریا کا نام ماسکو ہے، اسی وجہ سے اس شہر کو بھی ماسکو کا نام دیا گیا ہے۔ ماسکو، جو تقریباً 2560 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر آبادی کے لحاظ سے روس کا سب سے بڑا اور سب سے آگے شہر ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق 1.5 کروڑ کے قریب افراد صرف اسی شہر میں آباد ہیں، جو اسے روس کا سب سے گنجان آباد شہر بناتا ہے۔ روس کا دوسرا بڑا شہر سینٹ پیٹرز برگ ہے، جو بحیرہ بالٹک کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ شہر اپنی تاریخی عمارتوں، خوبصورت نہروں اور شاندار ثقافت کی وجہ سے روس کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ روس میں استعمال ہونے والی سرکاری کرنسی کو روسی روپ بھی کہا جاتا ہے۔ روس رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اسی وجہ سے یہاں کا کل 11 ٹائم زونز چلتے ہیں، جو مغرب میں یورپ سے لے کر مشرق میں بحر کاہل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ماسکو میں صبح کے 9 بجے ہوں تو روس کے مشرقی حصے میں شام ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روس میں سورج ایک ہی دن میں مختلف اوقات میں طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے روس کی کل آبادی کی، تو یہاں تقریباً 14,71,82,123 افراد موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روس نے نہ صرف رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، بلکہ آبادی کے اعتبار سے دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ روسی صحت کے لیے بہت کم دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے روس بذات خود اتنا وسیع، خوبصورت اور جدید ملک ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے ہی وطن کو ایک مکمل تفریح مقام سمجھتے ہیں۔ برف پوش علاقے، گھنے جنگلات، جدید شہر اور تاریخی مقامات روس کو صحت کے لیے خود کفیل بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر دنیا بھر میں استعمال ہونے والے نقشے جاتی نظاموں کی بات کی جائے تو گوگل میپس کو سب سے زیادہ مقبول سمجھا جاتا ہے، لیکن روس میں صورتحال کچھ مختلف ہے۔ یہاں گوگل میپس کو دوسرے نمبر پر رکھا جاتا ہے، جبکہ زیادہ تر روسی شہری یہ انڈیکس میپ
QGIS मैप इस्तेमाल करते हैं। इन जदीद मैप सिस्टम्स की मदद से रूस किसी भी शहर या किसी दूर दराज इलाके में बआसानी अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए रूसी अवाम इन पर ज्यादा इंतजार करता है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को को दुनिया का अमीर तरीन शहरों में भी शुमार किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को को दुनिया के अमीर तरीन शहरों में भी शुमार किया जाता है। यहाँ 150 से ज़ायद इंतहाई अमीर अफराद रिहाइश पजीर हैं। यही वजह है कि मॉस्को को रूस का माशी और मालियाती मरकज भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर रूस में लोगों की अयाशी और जिंदगी पर नजर डाली जाए तो यहाँ के लोग इंतहाई अयाश माने जाते हैं। खास तौर पर मॉस्को की नाइट लाइफ, यहाँ दुनिया भर से लोग सिर्फ इसका मजा लेने के लिए आते हैं। एक तो यहाँ की लड़कियां भी खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन रशीन लड़कियों का कोई भी जवाब नहीं। सफेद रंग, ऊंचा कद इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। ये लड़कियां जितनी खूबसूरत हैं इतनी ही ज्यादा अयाश और खुले माइंड की जाती हैं। पूरी रात लड़कियां सड़कों पर घूमती हुई नजर आएंगी। मॉस्को की नाइट लाइफ और यहाँ की डांस क्लब की तो बात ही अलग है। कहा जाता है कि रशियन लड़कियां सिर्फ चंद पैसों के लिए भी आपके साथ कुछ करने को तैयार हो जाती हैं। और दुनिया की बहुत गंदी मूवीज की इंडस्ट्री अमेरिका की तरह यहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ हर साल सैकड़ों फिल्में बनाई जाती हैं और रूस की बहुत सारी लड़कियां इसी शोबे से ताल्लुक रखती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी इनकी कोई रोकथाम नहीं की। लड़कियां जो चाहे वो कर सकती हैं। दिन हो या रात हो, लड़कियां इंतहाई बरना लिबास पहनती हैं जो कि इनके मज़ाहिब के मुताबिक जायज़ है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि अगर बात करें यहाँ के लोगों के मज़ाहिब की, तो प्यारे दोस्तों, रूस की आबादी 71% 7% रशियन लोग पर मुश्तमिल है। 3.2% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मज़ाहिब की, तो 61% के साथ क्रिश्चियन मज़हब सबसे ज़्यादा है। 24% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं और बाकी 4% लोग दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखते हैं। अगर बात की जाए रूस के मेडिकल सिस्टम की, तो ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल है। रूसी हुकूमत अपने शहरियों को मुफ्त भी सहूलियत फराम करती है, जिनमें हस्पताल, क्लिनिक्स और मेडिकल शॉप्स शामिल हैं। इस मुल्क में दुनिया के माहिर तरीन और तजर्बाकार डॉक्टर्स की फहरिस्त मौजूद है, जो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अगर रूस की तालीमी निज़ाम की बात की जाए, तो यहाँ की हुकूमत अपने शहरियों को इब्तिदाई तालीम से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम फराहम करती है। यही वजह है कि रूस दुनिया के इन चंद ममालिक में शुमार होता है जहाँ तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में तकरीबन 99% आबादी तालीम याफ्ता है। मोहतरम नाज़रीन, रूस दुनिया के सर्द तरीन ममालिक में शुमार होता है, लेकिन अगर बात की जाए रूस के सबसे ठंडे इलाके की, तो सबसे नुमाया नाम साइबेरिया याकुत्स्क का नाम आता है। याकुत्स्क रूस के मशरकी हिस्से में वाक़िया है और इसे दुनिया के सबसे सर्द आबाद शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत अक्सर -50 से 60 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि पाक औकात से -70 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। याकुत्स्क में वाक़िया छोटा सा इलाका ओवेमिया कोन दुनिया के सबसे सर्द बस्ती कहलाता है। यहाँ 1933 में -67.60 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो इंसानी आबादी वाले इलाके में सर्दी का आलमी रिकॉर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में वहाँ पर लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं। ये लोग खास लिबास और खुराक का इस्तेमाल करते हैं। पानी की पाइपलाइन जमीन के अंदर डाली जाती है ताकि बर्फ नीचे न जमे। गाड़ियाँ अक्सर चलती हालत में छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि अगर एक बार गाड़ी बंद हो गई तो दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल होता है। घरों की बुनियाद अमूमन ज़मीन से काफ़ी ऊंची रखी जाती हैं। अक्सर बर्फबारी में घर ही छुप जाते हैं। प्यारे दोस्तों, परिंदों के बादशाह बाज रूस का कौमी परिंदा है, जबकि रूस का कौमी जानवर रशियन ब्राउन बेयर है। रूस का हुकूमती निज़ाम फेडरल समी सदारती निज़ाम कहलाता है, जिसमें इख्तियारात वफाकी हुकूमत और रियासतों के दरमियान तकसीम होते हैं। अगर रूस की माशी ताकत की बात की जाए तो ये दुनिया की बड़ी मुश्तों में शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक रूस का सालाना GDP तकरीबन 5.0 आमदनी तकरीबन $38,000 के लगभग बताई जाती है।
इसी बुनियाद पर रूस की दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत की ताकत भी कहा जाता है। रूस को दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है और इसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी वो सनतें हैं जो आलमी सतह पर इसे मुमताज़ बनाती हैं। इसके अलावा मशीनरी की प्रोडक्ट से लेकर पहनने की प्रोडक्ट्स रूस अपनी तमाम चीज़ों को दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करता है। प्यारे दोस्तों, हर साल 3 करोड़ से ज़ायद लोग रूस का विजिट करने आते हैं। रूस की मईशत का दारोमदार यहाँ आने वाले विजिटर पर भी है। अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप पाकिस्तान में रूस की एम्बेसी के ज़रिए ऑनलाइन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ भी रूस के विजिट वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया में रूस के लिए वीज़े की शराइत पाकिस्तान के मुकाबले में आसान है, इसीलिए भारतीय शहरी निस्बतन बआसानी रूस का सफ़र कर सकते हैं। अमूमी तौर पर रूस का वीज़ा दुनिया के कई ममालिक के मुकाबले में निस्बतन आसान तरीके से हासिल किया जा सकता है, बशर्ते कि तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात मुकम्मल होनी चाहिए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताते चलूँ, रूस में दुनिया के सबसे बड़े गैस और तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं, जिनसे खाम माल निकालना और दुनिया को फ़रोख्त करता है। रूस का तकरीबन 13 लाख मुरबा किलोमीटर रकबे पर ज़ेरे काश्त है, यानी इतने बड़े रकबे पर काश्त की जाती है। रूस में ड्राइविंग राइट साइड पर है। पूरे रूस में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। रूस में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम भी मौजूद है, जिसे ट्रांस साइबेरियन कहा जाता है। इससे ट्रांस साइबेरियन के जरिए आप पूरे रशिया समेत कई दूसरे ममालिक का सफ़र भी कर सकते हैं। ये रेलवे सिस्टम के इंतहाई पुरअसकून और पुरआसाइश के साथ पैसेंजर्स को अपने मकाम तक पहुंचाता है। ये ट्रैक 92,000 किलोमीटर लगता है, जो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे ट्रैक सिस्टम में शुमार होता है। दुनिया का खूबसूरत तरीन बस ट्राम सिस्टम भी मौजूद है। ज़्यादातर ट्रेन, मेट्रो और बस का सफ़र लोग करते हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा जोहरी हथियार का ज़ख़ीरा भी मौजूद है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फ़ौज भी इसके पास मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, रूस के मुतालिक बताई जाने वाली आज की वीडियो का अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।